Hello story lovers, today I have a new story for you from my channel Diary of Stories. So let's start listening a new story. The title of the story is Akbar Half Brother. Akbar was looked after by a midwife during his childhood. बचपन में अकबर की देखभाल एक दाई द्वारा की जाती थी. She loved him like her own child and fed him with her milk. वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और उसे अपना दूध पिलाती थी. डिस्पाइट बिकमिंग अ ग्रेट किंग, अकबर स्टिल रिस्पेक्टेड हिज ग्रैंडमदर. एक महान राजा बनने के बावजूद अकबर अभी भी अपनी दादी का सम्मान करता था. whom he called दाई माँ, जिसे वह दाई माँ कहता था. द ग्रैंडमदर ऑल्सो हैड अ सन. एम्परर अकबर कंसिडर्ड हिम लाइक हिज ब्रदर. दादी का एक बेटा भी था. बादशाह अकबर उसे अपने भाई के समान मानते थे. He used to think that the woman who raised me like a son. वह सोचता था कि जिस औरत ने मुझे बेटे की तरह पाला, her son became like my brother. उसका बेटा मेरे भाई जैसा हो गया. Whenever his half brother came to meet him, जब भी उसका सौतेला भाई उससे मिलने आता, the king honored him and gave him gift. राजा उसका आदर सत्कार करता और उसे उपहार देता. Many times it used to happen that, कई बार तो ऐसा होता था कि King अकबर would become so busy in hosting him that, राजा अकबर उसकी आवभगत में इतने व्यस्त हो जाते थे कि he would not even go to the court. वह दरबार में भी नहीं जाते थे. This habit of his was not liked by the courtiers and बीरबल. उसकी यह आदत दरबारियों और बीरबल को पसंद नहीं थी. Because they did not find it beneficial for the king. क्योंकि उन्हें यह राजा के लिए लाभदायक नहीं लगा. Not to be present in court for such a small reason. इतने छोटे से कारण के लिए अदालत में उपस्थित न होना. Many matters related to governance have to be discussed. शासन प्रशासन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होनी है. One also has to interact with guests coming from country and abroad. देश विदेश से आने वाले मेहमानों से बातचीत भी करनी होती है. When the king will not come to the court, how will the work be done? जब राजा दरबार में नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा? Thinking about all these things, the courtiers were very worried. यह सब बातें सोचकर दरबारी बहुत चिंतित थे. Therefore, बीरबल along with some other courtiers, इसलिए बीरबल कुछ अन्य दरबारियों के साथ went to the king's palace to inquire about his well-being. राजा का हालचाल पूछने के लिए उनके महल में गए. The king asked बीरबल, Do you also have a half brother? राजा ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारा भी सौतेला भाई है? Like my dear half brother, मेरे प्यारे सौतेले भाई जैसा. Yes, my lord, I also have a half brother. हाँ महाराज, मेरा एक सौतेला भाई भी है. Well, why did you never bring him to the court? अच्छा, तुम उसे कभी दरबार में क्यों नहीं लाए? We would also like to meet your half brother. हम तुम्हारे सौतेले भाई से भी मिलना चाहेंगे. The king expressed his wish. राजा ने अपनी इच्छा व्यक्त की. But महाराज, he is too young to come here. लेकिन महाराज, वह यहाँ आने के लिए बहुत छोटा है. Expressing his inability, बीरबल said. बीरबल ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा. But still you must bring him here, the king said insistently. लेकिन फिर भी तुम्हें उसे यहाँ लाना ही होगा, राजा ने आग्रह पूर्वक कहा. बीरबल agreed to the king's advice. बीरबल ने बादशाह की बात मान ली. The next day all the courtiers were surprised to see that. अगले दिन सभी दरबारी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बीरबल was dragging a calf with him. बीरबल एक बछड़े को अपने साथ घसीट रहे थे. The king was also surprised and said, Are you in your right mind, बीरबल? Why have you brought this calf here? बादशाह भी आश्चर्यचकित हुए और बोले, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम इस बछड़े को यहाँ क्यों लाए हो? Your Majesty, I have only followed your order, बीरबल said politely. महाराज, मैंने तो आपके आदेश का ही पालन किया है, बीरबल ने विनम्रता से कहा. Since childhood, I have been brought up on cow's milk. मैं बचपन से ही गाय के दूध पर पला बड़ा हूँ. Because I drank her milk, she became like my mother. क्योंकि मैंने उसका दूध पिया, वह मेरी माँ के समान हो गई. And this calf of hers will be my half brother. और उसका यह बछड़ा मेरा सौतेला भाई होगा.
King Akbar immediately understood what Birbal wanted to tell him and laughed out loud. राजा अकबर तुरंत समझ गए कि बीरबल उससे क्या कहना चाहते हैं और जोर से हंसे. After this, he was never absent from the court to welcome his half brother. इसके बाद वह अपने सौतेले भाई के स्वागत के लिए कभी भी दरबार से अनुपस्थित नहीं रहे. Thanks for listening.